Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So we're talking about the memory management, right? And in the memory management, we saw the firstly that it's basically two types. One is either it is contiguous or non-contiguous. The contiguous means where the boundaries are attached, like India, Pakistan. The next boundary, no boundary to boundary contact, which is next. Contiguous actually means continuous, but in a sense, the boundaries are like an array. We have an array. What we say is it's a contiguous memory allocation, like one block has a boundary with the other block, right? So that is what contiguous means. And non-contiguous is what we do actually, okay? But this is the where we do the paging and segmentation. But basically, where we have arrived to the segmentation is from this thing, from the contiguous thing. And there we saw there's a fixed partition and dynamic partition, okay? And when we saw in a first, when there was no operating system, Hanan Shaukat and Mohammed Haris, admit to मैंने को किया है फिर भी admit नहीं हो रहे. Okay, so when there was a bare machine, what was in a bare machine? That we have no operating system. Okay, it's a fixed circuit like calculator. I told you that thing. That means we don't need to manage anything. But when we started using management, we started having operating system kernel in the RAM, and it is because of the von Neumann architecture, which tells us to keep the programs in the RAM. And then we have one user space, one full user space, where we can have a one program. And it was a really primitive one because we couldn't do anything about it. If we have to run other program, or we want to have multiple users or multiple programs, it will not help us. And also before Windows NT, when we had Windows 98 and so on, we didn't have a memory protection even. So that means this fence address was not there, and it could have crashed. Our user space programs could grow into the OS kernel and crash it. Then in Windows NT, we said we had a fence address which could protect us from running into the operating system kernel. So operating system kernel got the protection. And then we said we needed multiple programs. Okay, so then we started swapping in and swapping out different jobs, different processes from the hard drive. And then we said, okay, we need to have a swapping, but we need a better way of swapping. That is, we have a buffers, so that because when we swap, CPU is unavailable, processor is unavailable. So we want कि जितने टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है इसके ऊपर. Adnan, it's a missed call, but I have not nobody here. Oh yeah, I have. Sorry, admit all. ये नीचे गया था scroll. Nice. Adnan has given a missed call. That's that's like knocking. That's good. Just knock at the door like this, like a missed call. If I forget to admit, this is nice, Adnan. Danish Nazir has come up now. So इतने टाइम में तो CPU अनअवेलेबल है, जितने में स्वापिंग करेगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले आप एक काम करो कि आप जो प्रोसेस सेकंड है उसको ला के रखो इस स्पेस में, ठीक है ना, इस बफर में. So that what happens is कि P2 यहाँ आ चुका है, so then I don't have to wait. Operating system doesn't have to wait to load P2, but it was not a good way because P1 will be lost and P2 will go into it. P1 job will be lost. So we said we need a multiple buffers wherein we could save the P1, because जो काम हमने P1 भी किया पहले वो आप यहाँ डाले, फिर यहाँ से आप इसको हार्ड डिस्क में सेव करेंगे, लेकिन तब तक पहले जब तक वो P1 काम कर रहा था, P2 यहाँ से इस लोकेशन में आया है और फिर यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है ना. So it will give us now overlapping fashion swapping, and but it is still we want multi-programming. We want what? We want multi-programming where multiple programs are in the RAM. Okay, multiple jobs. Maybe we have tomorrow the multi-core systems which want to work on the many jobs at a time. So they all need to be in a RAM. Okay, and we said we have the MFT, multi-programming with fixed tasks. What is multi-programming with fixed tasks? Let us, it was after that, the digital electronics. Let us discuss it here now. So we have what is called as the MFT, multi-programming fixed task. It's basically of two types. Either we have the same size partition, same size
partitions or we have the variable size partitions. But it is the multi-programming with fixed task, means static partitions. This is the static partitions. So what is the static partition means? You have created a partitions at the boot time. Now you cannot actually change that boundaries. You have created the boundaries at the, this is OS kernel, then you created boundaries. Okay, now we have two types, either same size or a variable size. Same size means everybody is say 40K or 40 MB. So everybody is 40 MB. Okay, 40 MB, 40 MB, everyone is 40 MB size, all the portions. But you can have a variable size. Okay, and why we have variable size, I will tell you. Oh, there are many people invading, like Sabiha, Fiza, Danish. They should all come up at the right time. Okay, anybody having any doubts, do ask. Okay, not a problem. So anybody having any doubts, I appreciate questions and I'm giving you a lot of confidence to ask questions. ठीक है ना? और अगर आपको समझ नहीं आता किसी तरीके से, आप वो भी बोलें. Maybe I use different language or I use different examples. Lekin make it sure that you're understanding each and everything, and that too with the concept, not gota or just I'm saying something and that is the lecture's sake, that is over. It shouldn't be like that. Okay, we can come back to it. Maybe I put up a new example, put up a new video on it, do something, but make sure that you learn. Okay, and it will be only possible when you communicate with me and you tell me what are the problems you are facing, right? And I don't care what you have learned or you have learned nothing from the past. Whatever we are learning right now, Afreen Beg has come up. Whatever we are learning right now, we should learn it. Okay, so whatever you have done in the past, I don't care about that. So if you have any something which is missing and you are not able to understand anyways, you know, anyhow, you have to tell me that thing so that I will make it sure that you understand. मेरे ख्याल से काफी बच्चे आ गए. So let's get started. So I am saying variable size partition और फिक्स्ड साइज. वेरिएबल साइज में हम क्या करते हैं काम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ये है तो हम कहते हैं भाई ये 100 का ले लो आप, ये मान लीजिए 20 का ले लो आप, ये 80 का ले लो आप, ये 40 का ले लो एंड सो ऑन. यानी कि वेरिएबल साइज दे रहे हैं हम क्यों दे रहे हैं इसको भी डिस्कस करेंगे. बट इन बोथ केसेस दे आर स्टैटिक पार्टीशंस. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज स्टैटिक पार्टीशन? अभी बोल चुका हूं मैं, व्हाट इज स्टैटिक पार्टीशन, व्हाई आर बोथ ऑफ देम स्टैटिक पार्टीशंस? Because we create partitions at the सर क्योंकि इसमें लिमिट दी गई है, हर एक बाउंड्री में एक लिमिट दी गई है, इसलिए ये दोनों स्टैटिक ही है. no, these are static because we create them at the time of boot time. ये boot time पे create किए गए हैं. यानी कि static का मतलब ये होता है रुका हुआ है. यानी कि हम अगर हमने ये partition बनाया है, we cannot move this boundary now. We cannot move this boundary. So because why we cannot move this boundary? Because these are created at the boot time. So अगर इसको मूव कुछ करना है, that is the boot time, उसको कर सकते थे जो कि हुआ है. So इसलिए इसमें प्रॉब्लम्स है कि हम उसको मूव नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास MVT जो मैंने बताया वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. So why are they static? Because we cannot move these boundaries now. They are static. They are done. We are done with the boundaries. हमने दीवार बना दी है, that is it. We cannot move it. They are non-movable now. ठीक है ना? तो पार्टीशन दो किस्म के हमने बनाए, या तो हमने सेम साइज के बनाए या तो डिफरेंट साइज के बनाए. अब डिफरेंट साइज के क्यों बनाए अगर सेम साइज के थे? क्योंकि हमारे पास फ्रैगमेंटेशन होती है बहुत ज्यादा. इसमें इंटरनल फ्रैगमेंटेशन भी होती है और एक्सटर्नल. इंटरनल फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है कि आपको मेमोरी का पार्टीशन जाया हो रहा है. इंटरनल फ्रैगमेंटेशन भी होती है और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन भी होती है. Now internal fragmentation, मोहम्मद हारिस, यार हारिस तो एक दो बार आ गया, ये दूसरा बंदा है हारिस, ये ऐड ही नहीं हो रहा, इसको मैं 2-4 बार किया. Okay, now internal fragmentation will be the fragmentation within a partition. ये मेरा पार्टीशन है, मैंने मान लीजिए 40 का पार्टीशन था, ठीक है, और हमारी जॉब जो आ गई वो 20 की ही आ गई. तो अब जो 20 की आ गई तो मैंने ये ऑक्यूपाई कर दिया, ये 20 वाला मैंने ऑक्यूपाई कर दिया. लेकिन इसमें जो ये बाकी बचा 20 MB ये जाया हो गया. अब अगर क्या होगा कि अगर मेरे पास 20 MB का ही क्यों ना जॉब आ जाए, इफ आई विल गेट अ 20 MB जॉब, आई कैन नॉट असाइन इट हियर.
बिकॉज हर पार्टीशन का एक जॉब एक पार्टीशन में जाएगा, दिस इज द रूल, वन पार्टीशन विल गो टू द वन। इवन आपने 40 MB का इसको दे दिया ना, अब 20 MB तो बच गए ना, ये जाया हो गए। वी कैन नॉट, बिकॉज विद एवरी पार्टीशन whatever we give, we are giving it full, we are giving it full, okay? क्योंकि इसका जो बिगिनिंग एड्रेस और इसका एंडिंग एड्रेस मुझे चाहिए होता है फॉर टू सी कि ये पार्टीशन किसके अंदर है। अब अगर मैं दूसरा करूंगा वो ओवरलैप हो जाए। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि नहीं तो 20 MB, चलो मैंने 20 MB इसमें दे दिया, 20 मेगाबाइट, अभी 20 MB तो बच गया ना, मैं इसमें क्यों नहीं डालूं? लेकिन उस 20 जो दूसरा प्रोसेस में डालूंगा 20 MB का, दैट ऑल्सो नीड्स दिस बिगिनिंग एड्रेस एंड एंड एड्रेस। अब वो तो पहले वाली प्रोसेस को P1 जो मेरी पास प्रोसेस आई थी, मान लीजिए फर्ज कीजिए मेरे पास P1 प्रोसेस आई थी, वो 20 MB की थी। अब P2 जो मैं है वो भी 20 MB की है, मैंने P1 इसमें दे दिया 20 MB का, अब मैं P2 इस वाले में नहीं दे सकता, क्योंकि देन आई हैव टू गिव दीज टू एड्रेसेस टू P2 आल्सो। वो P1 को मिल चुके हैं, तो अगर मैं P2 को भी दूंगा सो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम को कि आइडेंटिफाई करने में कि वो कहां पर है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पार्टीशन का मकसद ये है कि इट इज एन एड्रेसिंग, इट इज व्हाट आई हैव गिवन दिस एड्रेस। जैसे एक रूम हमने BCA 4 सेम को दे दिया, अब उसमें लेकिन 4 ही बच्चे हैं, कैपेसिटी 100 की है, अब मैं उसमें MCA नहीं बिठा सकता। ठीक है, MCA के लिए मैं तब भी मुझे दूसरा रूम देना पड़ेगा। इट इज लाइक दैट, इज अ फिक्स्ड पार्टीशन, क्योंकि आपका जो कॉलेज है इट इज लाइक दिस फिक्स्ड पार्टीशन। अब BCA में 5 ही बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके 80 कुछ है, मान लीजिए 5 ही है आपके, और कैपेसिटी 100 की है। अब मैंने ये रूम जो है BCA को दे दिया है, आई कैन नॉट गिव इट टू द अदर प्रोसेस, अदर दिस थिंग। ठीक है ना, तो इससे जो पार्टीशन के अंदर ये जो कमरे के जैसे रूम था BCA का, उसके अंदर जो जगह बचती है उसे फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे हम, और ये पार्टीशन के अंदर बची ना जगह, तो दिस इज एन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, दिस इज व्हाट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना, अब इसमें एक्सटर्नल भी हो सकती है, क्योंकि आपने दे दिया जैसे कोई 30 MB की प्रोसेस आ गई थी, 30 वो इसको दे दिया, यहाँ पे 10 MB बच गए, यहाँ पे 40 बराबर हो गए। अब मान लीजिए आपको 60 MB की एक प्रोसेस है, कैन इट रीच हियर? नो। हालांकि यहाँ पे 40 MB खाली है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20, so 40 plus 20 is 60 plus 10 is 70. I have 70 MB free totally. यहाँ पे 20 MB और यहाँ पे 10 MB इंटरनल फ्रेगमेंटेशन खाली है, और यहाँ पे टोटल 40 KB का पार्टीशन खाली है। ठीक है ना, सो दिस 40 KB पार्टीशन विल कॉन्स्टिट्यूट आवर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि ये पार्टीशन के अंदर नहीं, ये पार्टीशन के बाहर ही मुझे पहुंच ही नहीं रहा मेरा ये जॉब, ये जाया है। ठीक है ना, सो मैंने कहा कि नहीं, जो क्योंकि मेरी जो प्रोसेसेस हैं वो सेम साइज की नहीं होती हैं, कोई बड़ी होती है कोई छोटी होती है, तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, हमने कहा कि आप पार्टीशंस क्रिएट करें लेकिन वेरिएबल साइज के। हमने स्टडी किया कि मान लीजिए 80 की 100 की ऐसे ऐसे पार्ट, तो उसी हिसाब से हमने पार्टीशंस बना दिए। ठीक है ना, सो हमने पार्टीशंस बना दिए, हमने पार्टीशंस बना दिए। ठीक है, डिफरेंट इसकी वेरिएबल हमने MFT किया, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड टास्क्स, मल्टी प्रोग्रामिंग फिक्स्ड टास्क ही किया हमने, बट हमने वेरिएबल साइज पार्टीशन बनाए। ठीक है ना, इसमें ये वाला था, ये सिंपल था, क्योंकि इसमें हर एक पार्टीशन सेम ही था, इसमें ये पंगा नहीं था कि अब मैं अपनी इंटेलिजेंस लगाऊं कि कौन सा पार्टीशन बेस्ट रहेगा मेरे लिए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जैसे आपके कॉलेज के कमरे जो है, माने हर एक की कैपेसिटी 100 है, आपके कॉलेज के हर एक कमरा 100 का है, 100 सीट्स का है। ठीक है, और मुझे बच्चे आते हैं क्लासेस में, किसी के 50 रोल है, किसी का 100 रोल है, किसी का 80 रोल है, मुझे इसमें इंटेलिजेंस लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर एक कमरे की कैपेसिटी सेम ही है। तो मुझे इसमें इंटेलिजेंस लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सा कमरा चूज करूं ताकि मेरी जगह जाया ना हो, क्योंकि हर एक में वही होगा, है ना। इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि अगर मैं कहूंगा BCA को मैं यहाँ नहीं उस कमरे में डालूंगा, उसमें नहीं इसमें डालूंगा, फर्क तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी 100 है। तो अगर आप 60 बच्चे हो इन ए ग्रुप, इन ए क्लास, ठीक है ना,
तो 40 की फ्रेगमेंटेशन होगी होगी, वो हर एक में ही होगी। इसमें तो इसलिए सोचने की वाली बात ही नहीं है कि, लेकिन इसमें जो वेरिएबल वाला है इसमें सोचने वाली बात है। इसमें पार्टीशन एलोकेशन एल्गोरिथम लगेगा। वी हैव टू यूज एन पार्टीशन एलोकेशन एल्गोरिथम फॉर दिस, क्योंकि इसमें सोचना पड़ेगा कि भाई मेरा अगर इतने साइज की प्रोसेस है, मुझे बेस्ट क्या रहेगा, मैं किस में डालूं, है ना। सो जो मेरा ये पार्टीशन है, ये जो रैम है मेरी, मैंने इसको पहले ऑपरेटिंग कर्नल डालना है, उसके बाद मैं पार्टीशन कर रहा हूँ। फर्ज कीजिए मैंने 100 MB का ये डाला, फिर ये 20 MB का डाला, फिर ये 60 MB का है, और ये फर्ज कीजिए 40 MB का है, एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 80 MB की जॉब आ गई पहले। अब अगर आपने वो वाला देखो था फिक्स्ड पार्टीशन, वो 80 MB उसमें घुसता ही नहीं, क्योंकि 40 MB का आपने साइज कर दिया था। लेकिन इसमें गुंजाइश है, क्योंकि इसमें 100 MB का है, मैंने 80 MB इसमें डाल सकता हूँ मैं। तो ये 20 MB जो है इसकी वेस्ट हो जाएगी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी फिर भी होगी, है ना। बट द थिंग इज दैट आई एम एबल टू अकोमोडेट द लार्ज प्रोसेसेस बिकॉज आई हैव नाउ द लार्जर पार्टीशंस। अब फर्ज कीजिए मेरे पास 10 MB या 16 या 18 MB की आती है। अब 18 MB वाली जो है, अगर मेरा फिक्स्ड पार्टीशन होता तो उसमें बहुत सारा नुकसान होता, लेकिन यहाँ पे मेरे पास मैं देखूंगा छोटा पार्टीशन कौन सा मेरा, भाई छोटा पार्टीशन 20 वाला है, इसमें डालो इसको, तो आपको 2 MB की ही इसमें फ्रेगमेंटेशन होगी, क्योंकि 20 आपने 18 MB इसमें डाल दिया। सो 2, क्योंकि मेरे पास तो छोटा सर पार्टीशन। वेरिएबल में हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम कंटेंट को उसके साइज के हिसाब से कहीं पे भी डाल सकते हैं। एग्जैक्टली लेकिन जो आप ये बोल रहे हो क्वेश्चन कि कहीं पे भी डाल सकते हैं, उसी चीज के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि पार्टीशन एल्गोरिथम, एलोकेशन एल्गोरिथम, कि हम पार्टीशन को एलोकेट करेंगे किस हिसाब से, ठीक है ना, जो आप बोल रहे हो। जी। तो उसी हिसाब से पार्टीशन एलोकेशन एल्गोरिथम है। एलोकेशन एल्गोरिथम यानी कि हम किस हिसाब से पार्टीशन को डालेंगे। लेकिन इसमें पहले क्या होता था कि पहले यही होता था कि हमारे पास जो पार्टीशन थे, ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल साइज पार्टीशन है, ठीक है, डोंट कंसीडर सिंगल साइज, दे आर मल्टीपल साइज। अब डायग्राम अच्छे से बनाएंगे। लेकिन एक चीज भी होती थी कि हमें हर एक पार्टीशन के पास क्यू होता था, प्रोसेस क्यू होता था, वो हर एक पार्टीशन के पास होता था। एवरी पार्टीशन हैज इट्स ओन प्रोसेस क्यू, कि जो प्रोसेसेस आएंगी हर एक पार्टीशन के साथ क्यू लगने वाला है, ठीक है। तो हमने इसमें देखा गड़बड़ देखा हमने, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जब ये प्रोसेस इसको आ रही है, फिर ये प्रोसेस इसको आ रही है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ प्रोसेसेस जो है इसमें पहुंच ही नहीं रहा, तो इसमें या इसमें फ्रेगमेंटेशन हो रही है या पहुंच नहीं रहा। तो यहां से हालांकि अवेलेबल स्पेस है, लेकिन हमने प्रोसेस इसमें डाली हुई है ना, तो वो वेट कर रहे हैं, वो वेटिंग में है कि जब तक ये खत्म होगा तब मैं दूसरा आ जाऊं, हालांकि यहाँ से जगह खाली है, ठीक है। इसमें जब हमने हर एक पार्टीशन के साथ क्यू डाला, प्रोसेस क्यू, दिस इज ए प्रोसेस क्यू। सो इसको पहले इंप्रूव करने के लिए हमने क्या किया काम, हमने कहा कि आप जो प्रोसेस क्यू है वो एक ही रखो, जो प्रोसेस क्यू है वो क्या रखो, कीप वन प्रोसेस क्यू एंड डिसाइड कि विच पार्टीशन दिस प्रोसेस हैज टू गो, दिस एंड डिसाइड जो भी खाली मिलेगा वो जाएगा ना। अब हर एक, वरना इसमें क्या हो रहा था कि इसमें जितनी भी प्रोसेस लगी, ठीक है, दे हैव टू गो इन दिस पार्टीशन ओनली। हो सकता था कि यहां से ये फिनिश हो गए और ये वेट ही कर रहे हैं और यहां से जगह खाली है, सो इट वाज नॉट एन एफिशिएंट वन। सो वी सेड नहीं, आप एक काम करें, आप एक ही क्यू लगा लें और डिसाइड करें कि कौन सा पार्टीशन एलोकेट करना है यूजिंग द पार्टीशन एलोकेशन एल्गोरिथम, ठीक है। इसमें पहला है वर्स्ट फिट, जो कि वर्स्ट ही है। दूसरा इसमें है फर्स्ट फिट, बेसिकली वर्स्ट फिट नथिंग है, लेकिन इट इज देयर जस्ट टू रीड फर्स्ट फिट। और तीसरा हमारे पास है नेक्स्ट फिट, और चौथा हमारे पास है बेस्ट फिट। तो हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस वर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट, व्हाट इज दिस। बेनिशा याकूब यहाँ से आई है, उसको मैंने कहा था मिस कॉल दे, क्योंकि मैंने कहा ना इस स्क्रीन पे है, तो
क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस स्क्रीन में डालूंगा तो फिर मैं लिखूंगा किस पे। अब मैं इस स्क्रीन पे रख रहा हूँ तो इसमें नजर कभी नहीं पड़ती, तो इसलिए यू शुड कॉल, ठीक है ना। मिस कॉल मारे छोटी सी, लाइक द नॉकिंग द बेल एट द डोर, ठीक है। बिनिशा थी ये शायद, सो बिनिशा याकूब, whenever you find that you are not getting entrance, just give a missed call, small, subtle, so that I can get you in. Now worst fit, first fit, next fit, best fit, क्या क्या चीज है ये, किसका है मुझे बताएं। What is it? What is this all about? Processes. It's all about processes, which will be Memory allocation, sir. Memory. Yes, it's a partition allocation. It's the partition allocation कि हम algorithm कि हम कौन सी process को कौन सा partition allocate करेंगे, because हमारे पास variable size partition है। अगर fixed size partition होते क्या उसमें algorithm लगाने की जरूरत थी? अगर No, fixed- sir. No, it was not, क्योंकि उसमें सारे पार्टीशन एक ही साइज के हैं, तो फायदा तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है ना। आप किसी भी पार्टीशन में कोई भी पार्टीशन उठा के उसमें डाल दो, उसमें तो वही होगा, सेम ही फ्रेगमेंटेशन होगी, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर मतलब वेरिएबल साइज पार्टीशन है तो उसमें फर्क पड़ेगी। पहले वर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट तो वर्स्ट ही है, वर्स्ट फिट, ओके। अब वर्स्ट फिट क्या करता है काम कि वो देखता है सबसे बड़ा पार्टीशन कौन है मुझे, और दिस इज ओएस, या say for example this is the 100k, this was 20k, this is 80k, this is 50k, this is 40k and so on. आपको प्रोसेस आई है 20k की, ओके। सो हालांकि मेरे पास 20k यहां पर है। वर्स्ट फिट मींस इट इज ट्राइंग टू अकोमोडेट द बिगेस्ट पार्टीशन व्हाटएवर, सो दैट इज दिस थिंग, इट विल असाइन दिस 20 to 100k, और इसमें 80k की, इसमें 80k की फ्रेगमेंटेशन होगी। So it's literally of no use, right? It's really it is trying to give you the biggest partition possible. हम कहते हैं कि आप क्या काम करो, this is just for saying it's of no use actually, कि biggest partition कौन सा मेरा, मैं वही दे दूंगा, ठीक है। फिर मैं सोचूंगा बाद की, जिस गोल्डन करना सुना ना कशिर पर तो ना ऐश कर, ठीक है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, खर्चो पद बोझो क्या बन बुझ, but we shouldn't work like that. So second is the first fit. अब फर्स्ट फिट ऐसे है जैसे कि मेरे पास ये मेमोरी है, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, आई डोंट नो व्हाई। ओके, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन वी हैव, से फॉर एग्जांपल दिस इज द 100k, दिस इज द 80k, एंड दिस इज द 20k, and now that is the 40k, and this is 30k, and my job is coming as 20k, or it could be 16k or something else. Can you please repeat this verse fit? Atufa Gul is asking a question. Verse fit is trying to give the biggest whole. This is what the books say. They call it whole, the partition. That means मेरे पास RAM है, मैं देखूंगा इसमें सबसे बड़ा पार्टीशन कौन है, दे दो उसी को। मैं ये देखूंगा ही नहीं कि मेरी प्रोसेस की साइज क्या है, क्या नहीं। अब इसको वर्स्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इट गिव्स यू द वर्स्ट केस सिनेरियो, बिकॉज इट गिव्स यू द मोर फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि मैंने क्या काम करता, जब 20k था मेरे पास, अगर मैं 20k इसमें लगाता ना तो 20k में तो फ्रेगमेंटेशन होती नहीं। लेकिन वर्स्ट फिट क्या करेगा काम, वो सबसे बड़ा पार्टीशन जो होगा पहले वो एलोकेट करेगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। इमटेरियल की फ्रेगमेंटेशन क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, इट डजंट मैटर, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, बट इट्स अ वर्स्ट बिकॉज इट गिव्स यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। यू अंडरस्टैंड? अब इसलिए हमारे पास फर्स्ट फिट है। फर्स्ट फिट क्या काम करता है? फर्स्ट फिट ज्यादा नहीं सोचता, सिंपल है। फर्स्ट फिट में एक चीज है, फास्ट है, सिंपल है। ये स्कैन करना शुरू करेगा ऊपर से। कहां से? ये ऊपर से स्कैन करना शुरू करेगा, एंड इट विल सी कि पहला पार्टीशन जिसमें ये घुसेगा, पहला पार्टीशन जिसमें ये 20k या 16k घुस सकता है, ठीक है ना, पहले से ये उसमें भरेगा। यानी कि अगर यहाँ पे पार्टीशन ऐसे है कि ये 100k है, ये उठाएगा डालेगा इसी में। अब इसमें भी 80k हो गई, ये तकरीबन वर्स्ट केस ही हो गया, है ना। लेकिन अगर पार्टीशन ऐसे नहीं होते, पार्टीशंस कुछ ऐसे होते, मान लीजिए ये 40k है, मान लीजिए ये मुझे जॉब आई थी 20k की,
तो मान लीजिए ये 10K है, फिर ये 15K का दूसरा पार्टीशन है, और देन दैट इट्स अ 40K का पार्टीशन है, एंड सो ऑन। अब जब ये स्कैन करना शुरू करेगा ऊपर से, ये देखेगा कि क्या 10K मुझे 20K इसमें पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता है, अब नीचे जाओ। 15K पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता है, नीचे जाओ। 40K में पहुंच सकता है, हाँ पहुंच सकता है, दे दो इधर, गिव इट हियर। सो फर्स्ट फिट, यानी कि जो ही आप ऊपर से आओगे, आप देखोगे मेरा जो ये प्रोसेस है किस में पहुंचेगा, ठीक है। इट इज नॉट बेस्ट फिट, इट्स अ फर्स्ट फिट। इट विल आफरीन जरीफ अबाई समझ आ रही है। सो फर्स्ट फिट में क्या होगा, इट कम्स फ्रॉम द टॉप, स्कैन्स एंड सीज कि मेरा पार्टीशन, मेरा प्रोसेस में अकोमोडेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो नीचे जाओ, अगर नहीं हो रहा है तो नीचे जाओ, नहीं हो रहा है तो नीचे जाओ, नहीं हो रहा है तो नीचे जाओ। जो ही ये देखेगा कि पार्टीशन इज बिग एनफ टू अकोमोडेट माय प्रोसेस, पुट इट इन। सर बस उसमें मेमोरी वेस्ट बहुत होती होगी, इसमें मेमोरी वेस्ट होगी ना? मगर उतनी नहीं होगी जितनी वर्स्ट फिट में है। फर्स्ट फिट में तो होगी, क्योंकि अगर इसको पार्टीशन मिला 100K का ही पहले, 100K जी सर, लार्ज हाँ, पार्टीशन में। तो हाँ, लेकिन ये अब डिपेंड करता है कि पार्टीशन का साइज कैसी थी। ठीक सर। इट्स अबाउट लक, और प्रोसेस कैसी आई थी। इसलिए तो हमारे दूसरे एल्गोरिथम है ना टू फिक्स दिस। यू आर राइट, ठीक है ना। यस सर। इसमें लेकिन एक और चीज है कि जो कि नेक्स्ट फिट ने निकाला, वो ये था कि अगर अब हमारे पास दूसरी प्रोसेस आएगी, क्या आएगी, दूसरी प्रोसेस आएगी मान लीजिए 30K की, ठीक है। सो इट विल अगेन स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द डाउनवर्ड्स एंड ट्राई टू सी विच वन इज द बेस्ट, ठीक है। which one is not best, which one it will not see which one is best, it will see which one is the first partition which can accommodate my process, ठीक है। ये ऐसा हो गया कि आप BCA के बच्चे हो, मान लीजिए 80 ये के, हम जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द कॉलेज के जो कमरे हमारे पास है, मैं पहले कमरे से शुरू कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ किस कमरे में पहुंचेंगे मेरे ये 80 बच्चे, चाहे उसकी कैपेसिटी 100 हो, 1000 हो, कुछ हो। लेकिन जो ही मैं अगर मेरे पहला कमरा था उसमें 50 ही कैपेसिटी है, तो मैं कहूंगा नहीं इसमें नहीं पहुंचेंगे, नेक्स्ट जाओ। जो पहला कमरा मुझे मिलेगा इतना बड़ा कि मुझे मेरे बच्चे घुस सकते हैं, चाहे वो बड़ा हॉल ही क्यों ना हो, आई डोंट केयर, लेकिन अगर उसमें मेरे बच्चे पहुंच सकते हैं तो मैं वो पकड़ूंगा। इट इज अ फर्स्ट फिट। और जब नेक्स्ट दूसरी प्रोसेस लगाऊंगा, उसके लिए भी मैं पहले से ही स्कैन करूंगा, आई विल स्कैन फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है, मैं पहले से ही स्कैन करता हूँ। इस चीज को नेक्स्ट फिट ने थोड़ा चेंज किया। जो नेक्स्ट फिट मेरे पास है, वी हैव ओनली 8 मिनट्स, जो हमारा नेक्स्ट फिट है, नेक्स्ट फिट फर्स्ट फिट की ही तरह है, सेम टू सेम। इट विल ट्राई टू सी विच इज द एनफ बिग एनफ पार्टीशन वेयर माय प्रोसेस कैन होल्ड। लेकिन इसमें सिर्फ एक फर्क है कि पहली बार इसने किया ना यहां तक, फॉर एग्जांपल इसने किया ना यहां तक, अब ये पहले से शुरू नहीं करेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, स्कैनिंग फ्रॉम हियर ओनली। जब ये पूरा एंड पे आ जाएगा तब ये ऊपर जाएगा फिर से स्कैन करने। डू यू अंडरस्टैंड? यस सो फर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है कि फर्स्ट फिट जब स्कैन करता है पार्टीशन, देखता है कोई ऐसा पार्टीशन जो कि एनफ हो, बिग एनफ हो, मेरे उसमें प्रोसेस जाए, तो फर्स्ट फिट पहले से फिर से शुरू करता है स्कैन करना। लेकिन जो मेरा नेक्स्ट फिट है, वो उसने यहां से शुरू किया, उसने प्रोसेस दी, अब नेक्स्ट टाइम वो वहीं से जहां प्रोसेस दी वहां से शुरू करेगा आगे, ठीक है। इतनी फर्क है खाली, लेकिन दोनों में फ्रैगमेंटेशन बहुत सारी होती है। इसलिए हमारा जो चौथा एल्गोरिथम है दैट इज बेस्ट फिट, ठीक है। अब बेस्ट सर जो आपने बोला नेक्स्ट फिट में ये 40K से स्टार्ट करेगा, हाँ, तो मतलब अगर वहां पे आपको मतलब 20 का जॉब होगा और पहला आएगा 10K, तब जाके वो 40K से स्टार्ट करेगा कि मतलब नहीं सिचुएशन मेरी बात सुनिए। 40K हमने असाइन किए ना पहली बार, मान लीजिए इस 40K में ये 20K हमने डाले, ये हमने किया। अब नेक्स्ट यहां से इस 40K जहां पे इसने डाला है ना, जहां पे इसने डाला पिछला असाइन किया, उसके नीचे से अभी शुरू करेगा ढूंढना कौन सा मेरा बिग एनफ है कि जिसमें मैं डालूं, चाहे वो 100K ही क्यों। अगर मान लीजिए इसको 30K डालने हैं, ये मान लीजिए 15K का है, तो इसके नीचे 15K, क्या इसमें घुस सकता है ये 30K? नहीं, मत घुस सकता है, तो ये नीचे जाएगा। अब ये नीचे वाला जो है मान लीजिए 1000K का है, या कितना भी बड़ा हो,
it will put it in, क्योंकि ये big enough है कि इसमें पहुंच सकता है, ये डालेगा इसमें। लेकिन फ्रेगमेंटेशन बहुत सारी होगी, होगी कि नहीं होगी? मतलब जहाँ पे प्रोसेस पिछली बार खत्म हुआ होगा फिर ये वहां से काम स्टार्ट वहां से करेगा। आगे चलेगा। ठीक, जैसे हमने कॉलेज के पहले कमरे से शुरू किया, मैंने BCL डाला रूम नंबर 3 में, ठीक है ना? अब रूम नंबर 3 से मैं रूम नंबर 4 से मैं आगे जा रहा हूँ। फर्स्ट फिट फिर से रूम नंबर 1 से शुरू करेगा स्कैन करना। फर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट में, नेक्स्ट फिट में यही फर्क है कि फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट इज एक्चुअली फर्स्ट फिट बट इट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट मींस जहां पे डाला था उसके आगे आप देखो। डज इट मेक सेंस? हाँ जी, यस सर। जी जी। good. Anyone having questions more? So what is the best fit now? The best fit you can Afrin Beg is asking something. Sir, if 40k के नीचे इसको 20k होगा, 20k होगा, ये 40k को ही लगाएगा फिर मूव करेगा 20k के लिए? नहीं 40k में बताना, 40k हमने दे चुके हैं, वो ऑक्यूपाई हो चुका है, वो ऑक्यूपाई हो चुका है। अब जो जहां पे इसने प्रीवियसली ऑक्यूपाई किया उसके नीचे से ये शुरू करेगा। Does it make sense? Afreen, you can open up mic and ask questions if you have. Afreen, जो 40 I'm saying कि जहाँ पे इसने 40K लिया ना, इसने दिया, मान लीजिए 40k इसने दे दिया, उसमें दिया, अब जो भी था वो 20k था, 10th था, क्या था वो दे दिया उसने। हाँ, उसके नीचे अगर 20K होगा इसको, तो ये वहाँ पे किसको कंसीडर करेगा, 40K को ही या 20K को? I'm not getting properly your question. You are saying कि हमारे पास ये एक यहाँ पे 40k का है, ठीक है ना? हमारी जो जॉब थी वो 20k की थी, वो इसने इसमें डाल लिया, ठीक है? अब आप कह रहे हो नीचे 20 कर रहा है ना, वहाँ पे 40K के नीचे इसको 20K होगा, तो ये किसको कंसीडर करेगा? ये 40k यहाँ पर है, यस इसके नीचे 20k का पार्टीशन है, यही बोल रहे हो आप? यस। जो हमारी पहली प्रोसेस आई थी वो 20k की थी, कितने की थी? यस सर। इसने वो डाली इस 40k में, तो ये ऑक्यूपाई हो चुका है। अब इसमें कहाँ डालेगा दूसरा, जिस पार्टीशन में? हालांकि इसमें अब 20k की फ्रेगमेंटेशन है, क्योंकि 40 के साइज था ना, 40k में से 20k दिया, 20k जाया हो गए, फ्रेगमेंटेशन हो गई, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गई, ठीक है? इस पार्टीशन में आप नहीं डाल सकते क्योंकि इसको ऑक्यूपाई हो गया। जैसे कि आपने आप 80 बच्चे थे, आपको मैंने एक रूम दे दिया BCA क्लास का जिसकी कैपेसिटी 200 की, आप हालांकि 50 बच्चे हो, अब उसमें आप घुस गए उस क्लास में, अब 150 वहां पे जाया, हालांकि है ना, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है क्लास के अंदर, ठीक है? अब मैं उसमें दूसरा क्लास, दूसरी प्रोसेस नहीं डाल सकता, मुझे नेक्स्ट उस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें डालना पड़ेगा अगर उसकी कैपेसिटी है। मींस जहाँ पे इसको कैपेसिटी मिलेगी वहीं पे जाएगा, नीचे फर्दर नहीं देखेगा। नीचे ही जाएगा ना, फर्दर ही देखेगा। यहाँ देखो, यहाँ सुनो बात, अब मानो 20k के बाद 40k, प्रोसेस 2 आ गई 40k, कितने की आ गई? So it will start scanning not from the beginning like first k, it will start scanning from here the next partition, जो पिछली बार असाइन किया उसके बाद वाला जो पार्टीशन है वहां से शुरू करेगा, देखना। अब चूंकि ये 20k का ही पार्टीशन है, क्या इसमें पहुंचेगा 40k? आफरीन, ये 20k का पार्टीशन है ना, इसको 40k असाइन करने, 40k पहुंचेंगे 20k में? नो सर। तो इसमें नहीं डालेगा, नीचे जाएगा। मानो ये 30k का है, क्या इसमें पहुंच सकता है? नहीं। अब मानो ये 200k का है, ये पार्टीशन 200k का है, इसमें पहुंच सकता है? हाँ, लगाओ इसमें। अब ये ऑक्यूपाई हो गया, so next time it will start from here. अगर फर्स्ट फिट होता, अगर फर्स्ट फिट होता, it will start from the beginning only, it will start from the, so it will not start from the last partition के बाद, it will start from the beginning. अब बेस्ट फिट क्या करेगा? मेरे पास खाली 2 मिनट है। अब बेस्ट फिट क्या करेगा? प्लीज यू क्लोज योर माइक क्योंकि इसमें शोर आ रहा है, प्लीज। बेस्ट फिट, अब बेस्ट फिट क्या करेगा काम? बेस्ट फिट देखेगा कि मान लीजिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मान लीजिए 100k का है, ये मान लीजिए 50k का है, ये मान लीजिए 20k का है, ये मान लीजिए 30k का है, 40k का है, और मुझे प्रोसेस आ रही है 20k। देखिए, अगर फर्स्ट फिट होता वो सीधे इसमें डालता और 80k की नुकसान हो जाता, है ना? लेकिन बेस्ट फिट क्या करेगा? इट विल स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम द टॉप एंड सी व्हिच पार्टीशन इज बेस्ट suited to 20k. Please close your mic, Kazim Shafi.
Okay, so best fit do what? It will try to see which partition is best suited to my job so that there will be least internal fragmentation. So I start scanning 100. तो मुझे स्कैन करना पड़ेगा सारा, क्योंकि मुझे सब में से देखना है कि सबसे बेस्ट कौन रहेगा. मैं देख रहा हूँ सब में बेस्ट मेरा 20 के है, वो बिल्कुल इसके है, तो मैं डालूंगा इसमें, तो कुछ भी जाया नहीं होगा. अगर मान लीजिए एक 20 नहीं था, 18 के का था, ठीक है, सो 18 के में देखूंगा सबसे बेस्ट कौन है मेरा, जहां कम, तो यही 20 मैं इसमें डालूंगा. इसमें थोड़ी सी 2K की फर्क रहेगी, लेकिन फर्स्ट फिट और बाकी जो एल्गोरिथम्स हैं उससे बेटर है, क्योंकि वो तो 100 में डालते हैं ना, जो फर्स्ट आता उसमें तो 80K की नुकसान हो जाता, 80K का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाती. यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी प्रोसेसेस को मैं ऐसे दूं, इट विल, ये अभी भाग जाएगा, टाइम ऑफ हो जाएगा, ठीक है, बेस्ट फिट ऐसे दूं कि मेरा बेस्ट फिट कौन सा है, ताकि सबसे कम जगह जाया हो. डज इट मेक सेंस? So, इस तरीके से जो बेस्ट फिट है उसमें सबसे कम आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी, लेकिन फिर भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी ही होगी. और उसके बाद जब ये प्रोसेसेस खत्म होते हैं, ठीक है, जो प्रोसेसेस खत्म होते हैं इसने किया, तो उसके बाद फिर से ये पार्टीशन आपके लिए अवेलेबल है टू डू द जॉब, टू असाइन द न्यू वेरिएबल, लेकिन फिर भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही है. तो इससे बेहतर नहीं है कि हम दूसरा करें, कि हम पार्टीशन बनाए ही ना, हम पार्टीशन उसी वक्त बनाए जब प्रोसेस आएगी, जितने की प्रोसेस आई उतना का ही पार्टीशन बनाओ. अगर आप में है ये कैपेबिलिटी, हम कहते हैं हाँ है, दैट्स कॉल्ड एमवीटी, दैट विल सी टुमारो, बिकॉज वी हैव few seconds.